Yesterday we were the definition of computer, which is very simple. This is the block diagram of computer. This is the block diagram of computer. This diagram was proposed by John von Neumann. Okay, so today's computer is still more or less similar to what John von Neumann proposed in 1908. Okay, some changes are but natural, they occur from time to time, but more or less computer is still similar. देखिए क्या है, this is input, this is memory, या कहीं कहीं प्रोसेसर भी इंटरचेंजेबली यहाँ लिखा रहता है. आउटपुट, दिस इज प्रोसेसर. देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. लुक इट केयरफुली दैट मेमोरी स्टैंड्स फॉर, इफ ओनली मेमोरी इज रिटन, सो मेमोरी स्टैंड्स फॉर primary memory and nothing else. Okay, memory stands for primary memory. Okay, so देखिए what happens when we are giving input is goes to memory. After processing, the content comes back to memory and then it is directed towards output. Actually this is the very beginning computer concept. Today's computer have some advancement. In today's computer the data after processing directly goes to output. Okay, these things are made because of making faster calculations. If we are sending data directly from processor to output, the calculation would automatically become fast, no doubt about it. Okay, so these small changes occur from time to time, so we are not taking concern of these changes. We are sticking to the original diagram proposed by John von Neumann. Okay, so this is the standard block diagram of computer. If in examination you are asked to define computer, you have to define computer and then draw this block diagram and nothing else. Okay, so if you pay attention to this diagram, one thing is very clear, that the computer is a device which works identical to human being. How human being behaves at logical level, computer is the resemblance of that process. हाँ, आप बताइए. देखिए अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं. इन प्रेजेंट सिनेरियो 15 मिनट्स टाइम अलॉटेड फॉर रीडिंग ओनली. पढ़ के आप क्या करते हैं, यू ट्रांसफर द कंटेंट गिवन इन क्वेश्चन पेपर टू योर मेमोरी थ्रू इनपुट डिवाइस. समझ में बात आई. आपके पास जो इनपुट डिवाइस है वो आपका आईज है. योर आईज आर इनपुट डिवाइस. ठीक है, वेरी गुड. आप आईज के थ्रू उसको ग्रैस्प करते हैं, मेमोरी में फीड करते हैं. ठीक है ना. जो भी डेटा है मेमोरी में आपने फीड किया, उसके बाद आप प्रोसेस करना शुरू करते हैं. ओके, तो प्रोसेसिंग में भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ठीक है ना. प्रोसेसिंग कुछ भी हो सकता है. जैसे आपसे कहा जाए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड. सपोज करिए लिखा है x इक्वल टू 2 + 4/2. तो यू में आंसर डायरेक्टली s इज
4, सही है ना? यू may आंसर डायरेक्टली बिकॉज इन दिस केस प्रोसेसिंग इज वेरी सिंपल। उसके लिए कॉपी पे कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन आंसर डायरेक्टली। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि यू हैव टू आंसर दिस 2 + 3/2 इंटू 4 - 7 into 5, so it is not easy to give answer directly without writing something on paper and something on paper with pen. Okay, am I clear? So in this scenario you have to do processing with help of paper and pen. So this is a little bit complex processing. So it does depends on the nature of processing whether you have to use pen and paper or not. Okay, so similarly your mind processes the information stored in memory. आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में ट्रांसफ़र हुआ। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो आप पेन पेपर पर उस प्रोसेस को करते हैं और आंसर लिखते हैं। अगर प्रोसेस सिंपल है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख देते हैं कॉपी में। कॉपी क्या है? कॉपी इज योर आउटपुट डिवाइस। कॉपी क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना? तो वहाँ पर आप कॉपी में आउटपुट लिख के सबमिट कर देते हैं। इसी तरीके से जब आप क्लास में होते हैं तब आपसे पूछा जाता है तो आपका जो माउथ है वो आउटपुट डिवाइस हो जाता है। आपसे बोलने के लिए कहा जाता है, आप बोल के बताते हैं उसको, एंड सो ऑन यू रिप्लाई। तो ये बिल्कुल जैसे ह्यूमन बीइंग वर्क करता है, एज ए ह्यूमन बीइंग एक्ट्स लॉजिकल लेवल, कंप्यूटर एक्ट्स सिमिलरली, ठीक है ना? तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि मेमोरी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर प्राइमरी मेमोरी एंड नथिंग एल्स। और मोर प्रिसाइसली कहा जाए तो मेमोरी स्टैंड्स फॉर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? अब इस चीज़ को हम अलग अलग थोड़ा देखेंगे। देखिए, ओके, तो यहाँ पर ड्यूरिंग द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर वी केम with some terminologies. These terminologies are, first of all, I am writing here program. What is a program? Pay attention to the spelling. This is not RAMME. Actually both are same, PROGRAM. This is similar to PROGRAMME. Actually this is American English and ME is British English. So in terms of computer terminology we usually use American English. Okay, so what is program? Program is a set of instructions given by programmer. प्रोग्रामर कौन है? ह्यूमन बीइंग है, जो हम लोग ही प्रोग्रामर होंगे, ठीक है ना? और कोई प्रोग्रामर नहीं होगा। प्रोग्राम हो गया, ओके। देयर आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग इज एन एक्ट of taking decision on the set of instructions, on the मत लिखो, according to set of instructions. और ये प्रोसेसिंग करता कौन है? प्रोसेसिंग इज डन बाय कंप्यूटर, ठीक है? बात क्लियर हुई?
प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटर कर रहा है और प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं। तो वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द प्रोग्रामर will be processed by the computer. Okay, so if we are giving correct instruction, we will get correct answer. If we are giving incorrect instruction, we won't be able to get correct output, correct answer. ठीक है ना? So हमें correct इंस्ट्रक्शन देने की स्किल डेवलप करनी पड़ती है, और ये स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होती है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। ओके, अब प्रोग्रामिंग इज ए स्किल, बहुत मतलब एक बहुत फ्रेज है विच इज ट्रू फॉर एवरी काइंड ऑफ लर्निंग। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस और एनी साइंस, एक्चुअली साइंस के टर्म में है, rewards you when you respect its symmetry. इसका मीनिंग ये है कि आपसे जो चीज एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, अगर आप उसको वर्क को करेंगे तभी वो साइंस आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। यू विल बी रिवार्डेड। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे और बाद में एडमिशन वगैरह नहीं होगा। ये सब प्रॉब्लम आती है। आप इकोनॉमिक्स की, आप कॉमर्स की फील्ड में जा रहे हैं, तो कॉमर्स की फील्ड में जो भी अकाउंटेंसी वगैरह पढ़ रहे हैं उसमें आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व नहीं कर सकते। हिंदी में है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगी। ये हर सब्जेक्ट के लिए सही है। तो यू हैव टू रेस्पेक्ट इट्स सिमेट्री। साइंस के सब्जेक्ट में ये खास कर हो जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर में अगर आप प्रोग्राम नहीं बनाते हैं तो यू वोंट बी एबल टू लर्न एनीथिंग। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करिए, प्रोग्राम बनाइएगा तो प्रैक्टिस करिए। तो हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा दो डेफिनीशन टर्मिनोलॉजी हो गई, प्रोग्रामिंग एंड प्रोसेसिंग। फर्दर आते हैं, कुछ और टर्म भी था, डेटा। हमने पढ़ा था ना कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, इनपुट मतलब इनपुट डेटा, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स डिजायर्ड आउटपुट। आउटपुट का मतलब इंफॉर्मेशन। तो लिखिए, डेटा लिखिए, डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर योर नेम, अल्फाबेट्स, आर डेटा। ठीक है ना। जैसे कि आपका नाम मनीष है, तो अल्फाबेट को क्या किया गया है? इट इज प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। एम प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आफ्टर ए, देयर ऑफ एन आई एस एच। ओके, दिस इज द ऑर्डर इन विच डेटा इज प्लेस्ड। तो डेटा उसके लिए अल्फ़ाबेट है। डेटा हमारा अल्फ़ाबेट में आता है। आपको कोई भी नंबर लिखना है, यू हैव टू राइट एनी नंबर, सो द डेटा फॉर दैट नंबर इज द सेट ऑफ integers from 0 to 9. Any number written by you is by using the set starting from 0 to 9. ओके, तो वो पूल जो होता है वही हमारा डेटा होता है। डेटा इंफॉर्मेशन लिखिए, डेटा आफ्टर processing becomes
इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। डेटा को प्रोसेस करने पर इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना नाम लिखा, नेम, सपोज करिए किसी ने अपना नाम लिखा मनीष, तो डेटा था हमारे पास ABCDEF अप टू जेड, उसको हमने एक पर्टिकुलर प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस कर दिया। जब प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस किया जो प्लेस का द मैकेनिज्म ऑफ प्लेसिंग, दो स्टेप्स आर कॉल्ड प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो प्रोसेसिंग किया तो उसके बाद हमारे सामने एक स्ट्रिंग आई मनीष, मनीष एक आई, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो डेटा में बी इक्वलाइज टू इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक है ना। तो डेटा ही इनपुट है और हमारा इंफॉर्मेशन ही आउटपुट है। तो पूरे कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग में यही होता ही है कि हम कुछ डेटा लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और जो आउटपुट होता है वो देखते हैं। तो दिस इज द होल थिंग व्हाट वी डू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। मैंने बताया ना कि प्रोसेसिंग में बी वेरी सिंपल, मे बी वेरी कॉम्प्लेक्स, इट डज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, एक रबर की एक टायर बनाने की फैक्ट्री है, तो टायर बनाने की फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जो होता है, जो डेटा होता है, वो रबर होता है। रबर इज सेंट, और उसके बाद बेस मटेरियल रबर ही होता है, उसमें और भी वायरस वगैरह यूज होता है, मेटल वायर, वो ठीक है। दीज आर इनपुट डेटा, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो टायर बनाना एक स्टेप का काम नहीं होता है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग वी गेट अ टायर, ठीक है ना। सो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, ये आउटपुट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज की क्लास यही टर्मिनेट कर रहे हैं। कल हम लोग मिलेंगे 12 बजे, ठीक है ना।